Yes, very good afternoon, boys and girls. I said very good afternoon, boys and girls. I said very good afternoon, boys and girls. Yes, that's okay. जितना खाए हो उतनी एनर्जी बाहर निकालो, right? So, very good afternoon, guys. I welcome you to yet another session of CA Foundation Law. We have started an important chapter in CA Foundation Law where we have started discussing about the Indian Contract Act 1872. Under this particular chapter, we have started the discussion on what is contract. Contract is defined in section number 2H of the Indian Contract Act 1872. Contract is defined under section 2H of the Indian Contract Act 1872 as an agreement enforceable by law. How many of you have prepared the definition book? Raise your hands clearly. Definition book कितने लोगों ने बनाई है? हाथ ऊपर करें बड़े साफ तरीके से. बाकी लोगों का मुहूर्त लगाओगे अभी? बाकी क्यों? मंडे का क्या मुहूर्त है क्या? ऐसा मंडे करते करते मंडे कभी आएगा नहीं. चलो, ओके. We have seen the definition of offer and proposal. Now हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर प्राइमा फेसी जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या होता है ये सारी बातों को हमें समझना है. सो फॉर इन दिस पर्टिकुलर यूनिट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस. जैसे कि फर्स्ट स्टेप में शुरुआत में होता है ऑफर या प्रपोजल. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ promise. Promise and set of promises forming the consideration for each other becomes an agreement. An agreement which is enforceable by law will become a contract. Yes or no? Then we saw what are the different types of contract. Contract can be classified on the basis of validity. Contract can be classified on the basis of formation. Contract can be classified on the basis of performance. Lastly, we saw all the essentials of valid contract which are specifically provided in section number 10. After discussion of all the specific condition, 2 नहीं बेटा 10 essentials of valid contract section number 10. definition book बनाया आप? लिखे नहीं उसमें? लिखे कि नहीं लिखे? section number 10 रोजाना पढ़ो. मजा तब है जब सब अपने को नीचे देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये बंदा ये बंदी कुछ करने के लायक या काबिल नहीं है. ऐसा मेरे साथ स्कूल में हुआ था, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने एक टीचर के तौर पे खड़ा हूँ. आज तुम्हें भी बहुत लोग देखते होंगे. मज़ा तब आएगा जब तुम सब लोगों को जवाब दोगी, बातों से नहीं, अपने रिजल्ट से. उसके लिए बहुत मेहनत लगती है. इफ यू are consistent, if you are punctual, and if you are hardworking, nothing in this life can beat you ever. Remember this. We have seen different types of contract on the basis of validity, on the basis of formation, on the basis of performance. Then we saw all the essentials of valid contract which are specifically provided in section number 10. Provided in section number 10. Yes or no? Right? After understanding the essentials of valid contract provided in section number 10, we also understood certain other essentials to form a valid contract which are not expressly provided in section number 10 but are essential to form a valid contract. है ना? Right? So, nature of contract का इतना डिस्कशन हमारा अब तक हो चुका है. आगे जो डिस्कशन है इट इज स्पेसिफिकली रिगार्डिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. कोई भी अग्रीमेंट कब होता है? जब कोई व्यक्ति कोई प्रपोजल करता है और वो प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तब जाकर एक एग्रीमेंट क्रिएट होता है. आया ना? प्रपोजल को जब एक्सेप्ट करते हैं तब प्रॉमिस बनती है. प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स अ अग्रीमेंट एंड एज इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. इट विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट. आया ना? आया ना? राइट? एनफोर्सेबल बाय लॉ. एनफोर्सेबल बाय लॉ के कुछ कंडीशंस है जो कि आपके नोट्स में आप देख सकते हो.
एनफोर्सिबल बाय लॉ में अगर आप देखो तो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ही कंडीशंस वहां पर कवर है। जो इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पूरे कंडीशंस मीट करता है वही एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, हाँ या ना। अगर कोई अग्रीमेंट है, वो अग्रीमेंट अगर इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे कंडीशंस को अगर फुलफिल करता है वही अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है, हाँ या ना, राइट। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ के कंडीशंस क्या है? ऑल द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कल मैंने आपको पढ़ाए थे, हाँ या ना। essentials of a valid contract are nothing but conditions which are required for enforceability of an agreement. An agreement is enforceable by law only if it fulfills the essentials of a valid contract. अभी ओके? तो essentials सॉरी enforceability by law के अलग से कोई conditions नहीं है। Enforceability by law के conditions वही है which are the essentials to form a valid contract. Now see, ultimately contract is formed out of an agreement. Contract is formed out of an agreement. An agreement is formed out of offer and acceptance or a proposal and acceptance. Bhale sits on his knees and says, Katrina, will you marry me? Now there is an offer or proposal by Bhale to Katrina. If Katrina agrees to same, she says कि हाँ भाई मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, तब जाकर दोनों के बीच में शादी को लेकर अग्रीमेंट होगी। तो अग्रीमेंट होगी, उसके बाद अगर उसकी एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ के कंडीशंस है, अगर बाद में यह अग्रीमेंट इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे कंडीशंस मीट करता है, तब जाकर यह अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा, हाँ या ना, राइट। सो इस वजह से इस सभी अग्रीमेंट के इस पूरे प्रोफार्मा में दो पॉइंट बहुत जरूरी है, एक है ऑफर और दूसरा है एक्सेप्टेंस। सो इन दो पॉइंट को अब बचे हुए यूनिट में और डिटेल में हमें जानना है। लेट्स से गणेश जो है, गणेश ऑफर्ड टू सेल हिज बाइक टू विष्णु, विष्णु प्रॉमिस टू पे 20,000 फॉर सेम। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, हम कुछ ऑफर कर देते हैं, लेकिन ऑफर करने के बाद हमें लगता है कि ऑफर शायद मैंने नहीं करना चाहिए था और उसे वो ऑफर कैंसिल करना है। तो ऐसा भी कुछ प्रोविजन है क्या जहां पर मैं अगर ऑफर करता हूं तो ऑफर को मैं कैंसिल कैसे कर सकता हूं? लेट्स से गणेश प्रपोज टू सेल हिज बाइक टू विष्णु, विष्णु प्रॉमिस टू पे 20,000, लेकिन बाद में विष्णु को लग रहा है कि नहीं, अगर मैं पैसे दे दूंगा तो मैं थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, तो उसका इरादा थोड़ा जो गाड़ी लेने का है वो बदल चुका है। अब उसने ऑलरेडी एक्सेप्टेंस दे दिया है, कैन ही रिवोक हिज एक्सेप्टेंस, कैन ही कैंसिल हिज एक्सेप्टेंस? अगर हां तो कैसे? तो यही चीजें अब हमें यहां पर डिटेल में देखनी है। वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज ऑफर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर, व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, what are the conditions regarding revocation of offer. We'll also be learning what is acceptance, what are the essentials of a valid acceptance, and what are the different conditions regarding revocation of acceptance. अब बचे हुए यूनिट में ऑफर और एक्सेप्टेंस, इन दोनों पॉइंट के ऊपर पूरा डिस्कशन है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑफर। एक्सेप्टेंस तो बाद में आता है, पहले क्या होता है? प्रपोजल और ऑफर। फर्स्ट क्या है? प्रपोजल और ऑफर, ठीक है। Proposal is defined in which section? Section number 2A of the Indian Contract Act 1872. क्या है definition? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing with a view to obtain the assent of that other to such an act or assistance, he is said to make a proposal. याद हुआ कि नहीं? अभी तक याद हुआ कि नहीं? चलो मेरे पीछे बोलो। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or assistance, he is said to make a proposal. हमने देखा था सिग्निफाइज का मतलब क्या है? टू कम्युनिकेट। व्हाट डज द वर्ड सिग्निफाइज मीन्स? टू कम्युनिकेट। व्हेन वन पर्सन कम्युनिकेट्स टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू
और टू एब्सटेन। टू एब्सटेन का मतलब क्या है? टू स्टॉप। विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट। असेंट का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस। विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट अदर टू सच अ एक्ट और एब्सिस्टेंस he said to make a proposal, right? Ganesh offering to sell his bike to Vishnu is a proposal which is being made to do something. Bhale making a proposal to Tare, Bhale making a proposal to Tare, promising him to pay 5 lakh rupees if he does not propose Katrina, is a proposal which is made to abstain Tare from doing something. This particular agreement will ensure, or this agreement will stop Tare from proposing Katrina. हाँ या ना? Let's say गंगाखेड़ रोड का काम चल रहा है। ये गंगाखेड़ रोड का जो काम है, इसका टेंडर 300 करोड़ में मिलने वाला है। अब मैं छोटा आदमी हूं ऐसे, लेकिन फिर मैंने सोचा कोशिश कर लेते हैं कि टेंडर जो है भर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये टेंडर अगर मैं भर लूं तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मेरे कंपटीशन में जो है हमारा ध्रुव है, वो बोल रहा मैं भी टेंडर भरूंगा। अब मुझे डर लग रहा है कि अगर ध्रुव टेंडर भर रहा है तो हम दोनों के कंपटीशन में हो सकता है ये टेंडर ध्रुव को चला जाएगा। लेकिन मैं ये टेंडर किसी भी हालत में चाहता हूं। आई डोंट वांट कि गलती से भी ध्रुव का टेंडर एक्सेप्ट हो, या टेंडर जो है ध्रुव भरे या ध्रुव की कंपनी भरे। तो मैं ध्रुव को बुलाता हूं, ध्रुव के साथ एक अग्रीमेंट करता हूं। अग्रीमेंट यह है कि भाई ध्रुव, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूं, लेकिन 10 लाख के बदले में आपने ये जो गंगाखेड़ रोड का जो टेंडर है इसे मत भरो। जिंतू रोड का टेंडर है उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, आप चाहे तो वो भर लो, लेकिन गंगाखेड़ का टेंडर है आपने भरना नहीं है। और नहीं भरने के लिए, आपका टेंडर वहां पे नहीं अप्लाई होने के लिए, आपकी एप्लीकेशन वहां नहीं जाने के लिए मैं आपको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। नाउ दिस इज अ प्रपोजल टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। और जब ध्रुव हां भरेगा तब जाकर ये अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। नाउ दिस अग्रीमेंट इज टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और टू स्टॉप ध्रुव फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो डेफिनेशन सबको क्लियर है? ये ऑलरेडी मैंने बताया था, फिर से एक और बार क्लैरिफाई किया है। तो मेरे और ध्रुव के बीच में जो अग्रीमेंट है, दिस अग्रीमेंट इज टू एब्सटेन टू डू समथिंग, टू स्टॉप टू डूइंग समथिंग, राइट? नाउ व्हाट आर द डिफरेंट इसेंशियल्स ऑफ ऑफर? एक ऑफर बनाने के लिए, एक वैलिड ऑफर करने के लिए क्या क्या इसेंशियल्स होते हैं? इसेंशियल्स यानी इंग्रेडिएंट्स, राइट? जैसे मैगी बनाते हैं, मैगी के लिए क्या क्या इसेंशियल्स है? बोलो। मैगी मसाला और पानी और गैस और मैगी, राइट? हाँ, पतीला। अच्छा ठीक है, समझ गया, जनरल नॉलेज सबका अच्छा है, सबको मैगी बनाने आती है। वैसे आई एम रियली गुड कुक, आई एम रियली गुड कुक, आई कैन कुक वेरी वेल, और आई कैन कुक मेनी डिशेस लाइक मैगी, प्लेन मैगी, चीज मैगी, बटर मैगी, कोल्हापुरी मैगी, मैगी मैगी। आई एम अ गुड कुक। साथ साथ मैं ये भी बना सकता हूँ, क्या? कॉफी, कॉफी विद शक्कर, कॉफी विदाउट शक्कर, कॉफी विद अदरक, कॉफी विदाउट अदरक, कॉफी विद मलाई, कॉफी विदाउट मलाई। दीज आर द संजीव कपूर बहुत बार रिक्वेस्ट करते हैं, सर आओ कभी खाना खजाना पे, लेकिन मैं मना करता हूं, मैंने कहा चुप, मैं आ जाऊंगा तुम्हारा शो बंद हो जाएगा। वो क्या है ना, अपन कहीं गए तो एकदम परफेक्ट काम कर दे एकदम। सो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है हंसी मजाक से बाहर आओ। चलो, मैगी मसाला, मैगी, पानी, पतीला, गैस, ये सारे इसेंशियल्स है टू मेक अ मैगी, है ना? है ना? चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, दूध, शक्कर और गैस, इन चीजों की जरूरत होती है। पानी की चाय हम नहीं पीते, गरीब लोग हैं हम। So these are the different essentials of
चाय और मैगी। अब ठीक उसी तरह से एक वैलिड ऑफर अगर अपने को करना है तो इस वैलिड ऑफर के क्या इसेंशियल्स है ये समझना है। फर्स्ट, देयर शुड बी 2 persons इन अ ऑफर। देयर शुड बी 2 persons इन द ऑफर। हाँ या ना? I make an offer to myself to sell my bike to myself for rupees 3 lakh rupees. Do you think it's a valid offer? Do you think it's valid offer? No. That means there should be 2 persons who are making an offer. Snehal offers to sell her bicycle to Riya. Now there are 2 persons. One is Snehal, another is Riya. आजकल बहुत जोड़ी जम रही दोनों की, क्या खिचड़ी पका रहे क्या मालूम उस कोने में, ध्यान देना पड़ता है इन दोनों के ऊपर। स्नेहल और रिया 2 व्यक्ति है। अब स्नेहल को अपनी साइकिल बेचनी है। शी इज मेकिंग एन ऑफर टू रिया। सो जो व्यक्ति ऑफर करता है, द पर्सन हु क्रिएट्स और मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड एज ऑफरर। क्या बोलते हैं उसे हम? ऑफरर। क्या बोलते हैं हम? ऑफरर। वो व्यक्ति जिसे ऑफर किया जाता है, जो कि रिया है, चक्रवर्ती नहीं बोला क्या, दुबे है, वरना बोलोगे उड़ता पंजाब। वो व्यक्ति जिसे ऑफर किया जा रहा है इज कॉल्ड एज ऑफरी। क्या बोलते हैं उसे? ऑफरी। जो ऑफर करता है ऑफरर, जिसे किया है ऑफरी, जो करता है ऑफरर, जिसे किया है ऑफरी। एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी। एक होती है स्नेहल, दूसरी होती है रिया। तो इसका मतलब कभी भी इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर ये कहते हैं कि देयर शुड बी 2 persons। देयर शुड बी 2 persons। ऑफरर, ऑफर को एक और नाम है प्रपोजल। ऑफर को एक और नाम क्या है? प्रपोजल। लेकिन नॉर्मली जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ऑफर नहीं प्रपोजल ही बोलूंगा, सॉरी प्रपोजल नहीं ऑफर ही बोलूंगा। क्योंकि कैसा है, बच्चे तुम बहुत गंदे हैं और इसमें ये बहुत चावट है, राइट ना? जैसे मैं बोला भाले मेक्स अ प्रपोजल टू तारे, आज मेरा क्यों एब्सेंट है? आज हनुमान चालीसा पढ़ रहा होगा। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए। तो ऑफर जो है, यस ऑफर जो है, ऑफर को एक और शब्द है प्रपोजल। प्रपोजल के अंदर जो प्रपोज करता है वो होता है भाले, और भाले कौन है? प्रॉमिसर। जो प्रपोज करता है वो है प्रॉमिसर, और जिसे प्रपोज किया जा रहा है वो है प्रॉमिसी। क्या है? प्रॉमिसी। सो स्नेहल इज ऑफरर, स्नेहल इज प्रॉमिसर, रिया इज ऑफरी, and Riya is promisee. So don't confuse between offerer, promiser. Offerer and promiser are one and the same. Offeree and promisee are one and the same. Offerer or promiser is the one who makes the offer. Offeree and promisee are the person who are going to accept the proposal or offer. So ultimately there should be 2 persons. One is promiser offerer, another is promisee or offeree. Next, offer should contain willingness to do or not to do something. 2 तरह के ऑफर हो सकते हैं, कुछ करने का ऑफर है, कुछ ना करने का ऑफर है। भाले कटरीना से शादी करना चाहता है, he makes offer, will you marry me? Now this offer is to do something or doing marriage with Katrina, right? Bhale makes an offer to Tare, where is making an offer to pay rupees 5 lakh if he does not propose Katrina. Now this is an offer which is made for not doing something. Offer can be of doing something, offer can be for abstaining from doing something. Offer can be of doing something or not doing something. Hai na? Next point. Offer can be positive, offer can be positive, or offer can be negative. Offer can be positive, offer can be negative. Whenever an offer is made for doing something, it is called as a positive offer. It is called as a positive offer. So Bhale making an offer to Katrina, will you marry me, is a positive offer. Whenever an offer is made to abstain from doing something or to stop from doing something, where Bhale has made a proposal to Tare of
not proposing Katrina and promising to 5 lakh rupees, this is an offer which is made for abstaining from doing something. I have made a proposal to Dhruv. In both the case, mine and Bhale case, where Bhale is proposing to Tare and I am making an offer to Dhruv, in both the cases the offer is to not to do something or abstain to do something. Yes or no? Such kind of offer are called as negative offer. Abstain from doing, to stop from doing something is a negative offer. To do something is a positive offer. Next, offer must be expressed so as to obtain the assent of the other. Let's say जो हम ऑफर कर रहे हैं वो ऑफर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जहां पर आप उस ऑफर से ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि जिसे आप ऑफर कर रहे हैं आप उसका एक्सेप्टेंस चाहते हो. जैसे कि भाले जो अपने नीज पे बैठा है, इज आस्किंग Katrina, इज मेकिंग एन ऑफर फॉर अ मैरिज, देन ही राइटली सेज विल यू मैरी मी, इज एन ऑफर वेरी clearly states his desire to marry Katrina. But let's say he meets Katrina and he says, I desire to marry Katrina. Does that show his willingness to marry Katrina? Desire is different. Desire is different. Willingness, there should be willingness. Proposal का definition देखो क्या है? When one person signifies to another his willingness, his willingness, his willingness, his willingness. Bhale desires to marry Katrina. Even I desire to marry Katrina. Prem desires to marry Katrina. Prathamesh desires to marry Katrina. Srinivas desires to marry Katrina. No? Okay, Srinivas desires to marry Alia. No, okay. विष्णु डिजायर्स टू मैरी रश्मिका. हाँ, ये जमला, ठीक है. एंड गर्ल्स डिजायर टू मैरी रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन. सो अब वो स्नेहल हाँ बोल रही, तो स्नेहल प्रपोजेस वरुण धवन, विल यू मैरी मी. नाउ वरुण धवन की कहाँ हुई, कहाँ हो गई? हाँ हो गई, कब हुई? गाबड़े छबड़ हो गया, हो गया गाबड़े छबड़ हो गया. अरे रे रे. तो हमारा एग्जाम्पल अच्छा है, हमारी कटरीना शादी नहीं करती और भाले भी कभी शादी नहीं करेंगे, चिंता मत करो. सो भाले डिजायर्स टू मैरी कटरीना. There is difference between desire and willingness. There is difference between desire and willingness. It is not compulsory what I desire, I am also willing to do same. It is not compulsory whatever I desire, I would be willing to do same also. Hi or na? Right or no? Right? So offer or the proposal should be made in such a sense which is made to take the acceptance of other. In our example, let's say Snehal makes an offer or proposal to Riya where she says, I desire to sell my bicycle. Does that give a clear intention or willingness of Snehal to sell her bike or cycle? Yes or no? Yes or no? Does that clearly state Snehal's willingness to sell her cycle? Hi or na? हाँ या ना? ना, इट डज नॉट क्लियरली स्टेट. डिजायर टू सेल माई साइकिल, मेरी इच्छा है, मैं सोच रही हूं कि अपनी साइकिल तुम्हें बेच दूं. अब इसका एक्सेप्टेंस अगर रिया दे भी देती है, फिर बोलती ये लो पैसे मुझे साइकिल दे दो, तो स्नेहल बोली कि पगली मैं मजाक कर रही थी, तू तो सीरियस ले ली. मैंने कहा मैं सोच रही हूं, सोचा था, अभी सोच मैंने कैंसिल कर लिया. सो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि एक प्रपोजल स्नेहल ने रिया को कर लिया है और प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होने के बाद भी एक प्रॉमिस क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि प्रॉमिस तभी क्रिएट होगा जब जो प्रपोजल या जो ऑफर किया जाता है दैट इज मेड विद अ विलिंगनेस टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर.
मैं ये सोच रही हूं कि मैं अपनी बाइसिकल तुम्हें बेच दूं, ऐसे सोच रखने के लिए तुमने एक ऑफर किया, वो रिया ने एक्सेप्ट कर लिया, वो पैसे लेकर आई और तुमने बोला कि मैं तो सिर्फ सोच रही थी। सो कैन देयर बी अ प्रॉमिस? कैन देयर बी अ प्रॉमिस? करेक्ट ऑफर क्या होगा? रिया मुझे मेरी साइकिल तुम्हें बेचनी है, क्या तुम लोगे? तब रिया हां करेगी। नाउ दैट इज अ प्रपोजल विच इज मेड विद इंटेंशन so as to take the acceptance of the offeree or the promisee. Are you getting my point? Are we okay? So offer must be expressed so as to obtain the assent of the other. Are we okay? Are we okay? So these are the different essentials of offer. ये चीजें, चार चीजें अगर होगी तभी जाकर एक ऑफर बनता है, तभी जाकर एक ऑफर बनता है। बात समझ में आई क्या? राइट? अगली हेडिंग हमें देखना है काइंड्स ऑफ ऑफर. व्हाट आर द डिफरेंट types or classification of offer. Offer can be classified on the basis of how it is made and to whom it is made. Offer can be classified as to how it is made and to whom it is made. When offer can be classified on the basis of how it is made, it can be classified as express offer or it can be classified as implied offer. कुछ याद आया? Types of contract: express contract, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस मतलब क्या? जो ओरल और रिटर्न में होता है वो एक्सप्रेस होता है. इम्प्लाइड क्या होता है? जो एक्शन या इम्प्लाइड बाय लॉ होगा वो क्या होगा? इम्प्लाइड. वही लॉजिक यहां पर है, कुछ नया नहीं है. सो एक्सप्रेस ऑफर यानी ऑफर वो जो राइटिंग में है या ओरली है, वो क्या है? एक्सप्रेस ऑफर. जूली जो बस में बैठती है, बस आके जो बस स्टैंड पे, बस स्टॉप पे खड़ी होती है, नाउ बस इज ऑफरिंग इट सर्विसेज, लेकिन वो बुला बुला कर बोलते कि आओ हमारे बस में बैठ जाओ, नहीं, वो सिर्फ बस स्टॉप पे आके खड़ी हो जाती है. तो उसके एक्शन से, बस के जो एक्शन है, ड्राइवर जो बस स्टॉप पे बाइक वो अपनी बस रुकाता है, वो जैसे ही बस रुकाता है वो एक्शन से ये समझ में आता है दैट द पीएमटी बस इज ऑफरिंग इट सर्विसेज. सो पीएमटी बस ऑफरिंग इट सर्विसेज बाय स्टॉपिंग एट द बस स्टॉप इज अ इम्प्लाइड ऑफर. इज अ इम्प्लाइड ऑफर. लेट्स से यहाँ नीचे खड़ी है स्नेहल, उसकी साइकिल पंक्चर हो चुकी है, अब उसे घर जाना है. घर जाने के बाद अब उसे रिक्शा चाहिए. बाहर जाकर रोड पर खड़ी हो जाती है, हाथ दिखाती है. एक ऑटो वाला जो खाली होता है, कोई पैसेंजर नहीं होता साथ में, वो आकर रुक जाता है. और जैसे ही जो ऑटो रिक्शा वाला फेलो वहां आकर रुक गया, वो पूछेगा भाई कहां जाना है. जैसे ही वो रुकता है, दैट मीन्स ही इज ऑफरिंग हिज सर्विसेज बाय स्टॉपिंग इन फ्रंट ऑफ द पैसेंजर. हाँ या ना? नाउ दिस इज ऑफर by action. So will it be an express offer or will it be an implied offer? Express or implied? Express or implied? Are you getting my point? Are you getting my point? Action or implied by law? जैसे कि implied by law में क्या है? अगर किसी की चीज घूम जाती है, किसी की चीज घूम जाती है, तो वो अगर आपको मिलती है तो there is an implied contract between you एंड द पर्सन जिससे वो गुड बिलोंग करती है. जैसे कि गणेश और विष्णु का एग्जांपल लिया था. गणेश अपने आम की थैली वहां भूल चुका था. भूलने के बाद विष्णु से खा नहीं सकता. विष्णु को एज इट इज वो थैली पूरे आम के साथ गणेश को लौटानी होगी. देयर इज इम्प्लाइड ऑफर, देयर इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस एज इट इज इम्प्लाइड बाय लॉ. याद आया क्या? ऑन द बेसिस ऑफ टू हुम इट इज मेड. जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर. जनरल ऑफर, specific offer. Snehal stands in front of the class and says, मुझे मेरी साइकिल बेचनी है 5,000 में, अगर किसी लेना है तो बता देना. Now this is a can this be accepted by anyone from the class? हाँ या ना? So whenever offer is made to general public and be accepted by anyone who knows about the offer, will be called as a general offer. But say Snehal makes the offer to Riya. That offer is made to a specific person. That specific person is Riya. Now this is a specific offer. Are you getting my point? Classification समझ में आ रहा है? Right? Classification of offer. Express offer. When offer is made either orally or in written, it is called as a express offer. Right? Ganesh wants to sell his bike to Vishnu and he wants to make an offer to Vishnu. So he called him up over a telephonic conversation. He said, "Hey Vishnu, मला माझी गाडी विकायची, तुला घ्यायची आहे का? I want to sell my bike. Do you want to buy?"
ओके, तो विष्णु फोन पे बोलता है हाँ हाँ मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं, मुझे कीमत बता देना, उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा. Now there is an offer which is made by Ganesh to Vishnu. This offer is made over a telephonic conversation. Now this is a express offer. This is a express offer as it is made orally. As it is made orally. Let's say Ganesh does not make a call to Vishnu, but Ganesh writes a mail. Ganesh writes a mail making an offer to sell his bike to Vishnu. Now this is a express offer, but that to be written. That to be in written. Are you getting my point? Are you getting my point? Yes or no? Yes or no? Company issued its shares to general public, but every company which issues shares to general public also has to issue prospectus. Also has to issue prospectus. Now prospectus is the offer document. How is the offer? Express. That to be in writing. Are you getting my point? Are you getting my point? Are you getting my point? Next, implied offer. When offer is made through actions or implied by law, it is called as implied offer. जैसे बस का एग्जाम्पल मैंने दिया, ऑटो रिक्शा का मैंने एग्जाम्पल दिया, गणेश की बैग का, महंगे वाले बैग का दिया. Now these are all implied offer. Now the bank is offering cash services through ATM. Bank is offering cash services through ATM. Whenever we go to an ATM, the ATM machine is offering its cash services to you. We insert our debit card, enter the details, we are accepting the offer which is made by bank for giving the cash services. Yes or no? क्या कहीं पर भी oral या written express of offer है? नहीं. बैंक उस ATM मशीन के द्वारा, अपने actions के द्वारा अपना ऑफर कर रही है. Now this is an offer which is implied offer. Are you getting my point? General offer, when offer is made to public at large, hence anyone can accept it, is called as general offer. इसके ऊपर एक interesting example है. And specific offer. Specific offer is when the offer is made to a specific person. When the offer is made to a specific person, then it is called as a specific offer. Right? हंसुन होगा. Right? तो दो तरह से specific और general offer हो सकते हैं. Let's say पहला ऑफर है where Bhale offers to marry Katrina. Now this is a but now Bhale has completed his chartered accountancy course. He has become chartered accountant Chaitanya Bhale. And let's say he's placed in one of the big companies where he's project manager of Reliance and is having an annual package of 1 crore rupees. खिचड़ी खाऊंगा ना वाला. अब इतना भाले का नाम हो चुका है, इतना बड़ा उसका ओहदा है, कद कम है लेकिन ओहदा बड़ा है, और इतनी बड़ी डिग्री उसने ले ली है अपने कद से बड़ी, और इतने बड़ी पोस्ट पे वो चला गया. तो मम्मी बोली बेटा मेरी सुनो, तुम्हें कटरीना विटरीना के चक्कर में मत पड़ो. उसका क्या है, आज रणवीर सिंह की है, कल सलमान की थी, आज तुम्हारी होगी, कल दायमा की होगी, परसों तारे की होगी, तो कोई भरोसा नहीं है. तुम चिंता मत कर, तू मेरा लाडला है, मादा लाडला है, और मादे लाडले को मैं बिगड़ने नहीं दूंगी. इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ सही सोचती हूँ. तो बोले मम्मी क्या करोगे? कुछ तो करो मम्मी, वरना मुझे कुंवारा ही मरना नहीं है, मेरी शादी करनी है. तो बोले चिंता मत कर, हम क्या करते हैं, तुम्हारा स्वयंवर रखते हैं. भाले का स्वयंवर. जस्ट इमेजिन, स्वयंवरी ना, स्वयं वधु, सॉरी स्वयंवर अलग रहता है, स्वयं वधु ये ऑलरेडी वर है. स्वयं वधु, स्वयंवर जैसा हमारे भाले के लिए अरेंज किया है. अब मुझे बोलो मम्मी ने क्या किया, मेरा बेटा ऐसा ऐसा है, ये कंपनी में काम करता है, उसकी फोटो वीटो मस्त एकदम गोरी पाट एडिट की हुई, एकदम एडिटिंग कर के मस्त फोटो बायोडेटा के साथ. अरे तू क्यों चिंता, तू थोड़ी जाने वाला है उसके स्वयंवर में. तो स्वयंवर की घोषणा हो चुकी है. मम्मी ने अपने भाले का मस्त एक फोटो खिंचाया, एकदम वो बचपन के लकड़ी का घोड़ा उस पर बैठ के ऐसे भाले
घोड़ी चढ़ गया ओए, राइट। वो मस्त छोटी बचपन की लकड़ी की घोड़ी पे बैठ गए, भाले ने फोटो खिंचा ली, मम्मी ने फोटो लगा दी, दूल्हा इज रेडी, दुल्हन वांटेड, मेरे ब्रदर की दुल्हन हमारी जूली भी ढूंढ रही है, और एड लगा दी भाले का स्वयंवर। वो भी वॉट एवर रहे बाबा, समझ लो थोड़ा। अब ये सारे अखबारों में, सारे न्यूज़पेपर में जो स्वयंवर का जो न्यूज है वो दे चुके हैं। अरे वो भी रहे, जो भी रहे। तब इसे देखकर जो वधु जो हमारे भाले से शादी करना चाहती है, वो सारे लोग आ जाएंगे। तो लिस्ट में बहुत से लोग आएंगे। कैन दिस ऑफर बी एक्सेप्टेड बाय जूली? यस। कैन दिस ऑफर बी एक्सेप्टेड बाय रश्मिका? यस। कैन दिस ऑफर बी एक्सेप्टेड बाय कैटरीना? यस। कैन दिस ऑफर बी एक्सेप्टेड बाय आलिया? यस। कैन दिस ऑफर बी एक्सेप्टेड बाय कियारा? यस। And can this offer be accepted by Malaika? Yes. शिल्पा शेट्टी नहीं बेटा, शमिता शेट्टी। आथिया, क्या नाम है उसका? आत्या आत्या शेट्टी? यस। और कौन आने वाला है स्वयंवर में? नहीं, सुनील शेट्टी नहीं आएगा बेटा, सुनील शेट्टी की बेटा। हाँ, हो जैकलीन भी आ सकती है। मुझे तो तेरी लत लग गई, लत लग। ममता बनर्जी। हाँ, सारा अली खान, क्या नाम सुझा रहे, बहुत पॉपुलर है ना हमारे तो। हाँ, अब हमारा पॉपुलर भाले स्वयंवर में बैठा है, और इतने सारे सभी लोग जो है स्वयंवर में आ गए हैं। अब कोई भी स्वयंवर में आ सकता है, क्योंकि स्वयंवर का जो ऑफर है वो एक क्या है? जनरल ऑफर है। जिनको इस स्वयंवर के बारे में पता होगा, हर वो वधु इस स्वयंवर में आ सकती है, राइट। तो स्वयंवर, भाले का स्वयंवर इज अ जनरल ऑफर, एंड भाले वांट्स टू मैरी कैटरीना इज अ स्पेसिफिक ऑफर। मजाक से बाहर आ जाओ, मजाक से बाहर आ जाओ, चलो मजाक से बाहर आ जाओ, माने दे बेटा। सो अभी जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर के ऊपर एक केस स्टडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीए फाउंडेशन के हिसाब से थोड़ी जरूरी है। Now the case study based on specific offer and general offer is Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. The case study is Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. See, our Indian law are based on English laws. So most of the reference or case laws which we see in our Indian law are taken from the English case studies. Are taken from the English case studies, right? This was passed in the year. क्या बोल रहे तुम, पागल हो गए क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज पास इन द ईयर 1890। कौन बोला? सी, our Indian law is based on English laws. So हम देखेंगे कि हमारे कोर्ट में अभी भी, आज के दिन भी बहुत से इंग्लिश केस स्टडी का या केस का रेफरेंस लिया जाता है। एक केस ऐसा ही है जो जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर पे बेस्ड है, दैट इज कार्लिल वर्सेस
कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। केस क्या है समझने की कोशिश करो, ये इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन पे इसके ऊपर आपको केस स्टडी आ सकता है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मेडिसिन यूज्ड टू क्योर इन्फ्लुएंजा। The company had given advertisement in newspapers stating whosoever consumes the medicines with proper precautions and care and if deceased with influenza will be paid 100 pounds. Carlyle had consumed the medicine and still deceased with influenza. Carlyle sued the company for 100 pounds as per the advertisement. Carbolic Smoke Ball Company argued that they did not make any offer to Carlyle, held that the advertisement given in the newspaper is considered as general offer and hence can't be accepted and hence can be accepted by anyone. भाले का जो है स्वयंवर जो है वो एड जो है न्यूज़पेपर में चला गया है, हर न्यूज़पेपर में। अब ये सब देखकर स्वयंवर में तो अलग अलग हीरोइनें आ गई है, जैकलीन आई, ये आई, वो आई, ठीक है, लेकिन इसके अलावा मल्लिका शेरावत भी आ गई। अब मल्लिका शेरावत आई तो फिर वो बोली कि मैं भी इच्छा रखती हूँ, लेकिन मम्मी बोली नहीं नहीं तुम अच्छे पिक्चरें नहीं करती हो, तुम गंदी हीरोइन है, तुम नहीं आना। वो बोला ऐसे कैसे नहीं आना, जनरल ऑफर है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखा है, मैंने देखना है। नहीं नहीं तुमने पिक्चरें अच्छी नहीं की है, तुम अच्छी हीरोइन नहीं हो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम मेरे फेवरेट नहीं हो, मेरी तो जैकलीन फेवरेट है, लत लग गई, तुम नहीं हो, तुम वापस चली जाओ। मल्लिका बोली मैं वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि एक जनरल ऑफर है और जनरल ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ये हुई हंसी की बात। अब केस स्टडी की तरफ आओ। केस स्टडी क्या है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इज अ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन कंपनी जो मेडिसिन बनाती थी। इन्होंने एक टैबलेट बनाई, दवाई बनाई जो कि स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा इस डिसीज को क्योर करता है। उन्होंने दवाई बनाई और दवाई इस तरह से बनाई, उन्हें यह लगता है कि हमारी दवाई जो है 100% इन्फ्लुएंजा को क्योर कर सकती है। तो उन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर पे एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया। उस एडवर्टाइजमेंट में दिया है कि जो कोई भी हमारे कंपनी की एडवर्टाइजमेंट जो दी है, उस एडवर्टाइजमेंट में लिख दिया जो कोई भी हमारे कंपनी की ये दवा लेगा और सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, सारे जो प्रिकॉशंस है जो फॉलो करेगा, उस व्यक्ति को कोई भी हाल में इन्फ्लुएंजा की डिसीज नहीं हो सकती। आज से 100 दशक पहले अगर आप हिस्ट्री में जाओ, every 100 years there has been a big pandemic. 1921, year of Great Divide. We saw negative growth in the population. That was due to widespread influenza. If you remember, that is due to widespread influenza, right? India lost 5% of its population that time. Around more than 1.5 crore people died due to influenza. I have taught you in 11th standard also, right? So ये जो कंपनी थी उस दौर के ये पैंडेमिक इन्फ्लुएंजा को क्योर करती है, इसका दावा कर रही थी। और इस एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने क्लियरली दिया है जो व्यक्ति हमारे कंपनी की ये दवा लेगा, कंज्यूम करेगा, सारे प्रिकॉशंस फॉलो करेगा, कोई भी हाल में उसे इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। बावजूद अगर कोई कस्टमर दवाई लेता है, प्रिकॉशंस फॉलो करता है और वो अगर इन्फ्लुएंजा से डिसीज्ड हो जाता है तो उस व्यक्ति को कंपनी 100 पाउंड का रिवॉर्ड देगी या मुआवजा देगी। ये एडवर्टाइजमेंट पढ़कर कार्लिल ने जो है दवाई खरीद ली, दवाई कंज्यूम कर ली, उसके सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए। इसके बावजूद जो है कार्लिल वॉज डिसीज्ड विद इन्फ्लुएंजा। तो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से कार्लिल ने कोर्ट में केस कर दिया, इसीलिए कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल है। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ऊपर अपना केस कर दिया और केस में यह दावा किया कि इन्होंने जो बोला है, जो एडवर्टाइजमेंट में ऑफर किया है, ये सब झूठ है और इसके बावजूद मुझे दवाई लेने के बावजूद मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो अब मुझे वो 100 पाउंड का रिवॉर्ड चाहिए, 100 पाउंड का रिवॉर्ड चाहिए। अपने कार्बोलिक स्मोक बॉल इज डिफेंडेंट, अपने डिफेंस में
कार्बोलिक स्मोक बॉल कोर्ट को ये कहती है देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस एंड कार्लिल, between us and Carlyle. For a contract there has to be offer. We did not make any specific offer to Carlyle, जिसका acceptance उसने दिया नहीं है. As there is no offer and acceptance, there is no contract. There is no contract. ऐसा डिफेंड कौन कर रहा है? कार्बोलिक स्मोक बॉल. कोर्ट क्या बोलती है? कोर्ट ये बोलेगी यहां स्पेसिफिक ऑफर है ही नहीं. जो आपने एडवर्टाइजमेंट छापा है ना न्यूज़पेपर में, जिसका कटिंग कार्लिल के हाथ में है, वो एक जनरल ऑफर है. एंड जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हैविंग द नॉलेज ऑफ इट. लिसन टू मी केयरफुली. जनरल ऑफर कांट बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन. जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन ओनली हैविंग द नॉलेज ऑफ द ऑफर. स्नेहल खड़ी हो गई, मुझे मेरी साइकिल 5,000 रुपए में बेचनी है, अभी इस बैच पे उसने बोल दिया. नॉन फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स यहां पर है क्या? नॉन फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स यहां पर है? डू दे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑफर? दे कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर इवन इफ बीइंग द जनरल ऑफर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन. भाले, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन प्रोवाइडिंग दैट पर्सन हैज द knowledge of the offer. If the general offer is not communicated to anyone or person, that person cannot accept the offer. स्नेहल ने अभी इस वक्त खड़े रहकर कहा कि मुझे मेरी साइकिल 5,000 में बेचनी है, तो क्या यह ऑफर नॉन फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट हुआ है? कम्युनिकेट हुआ है क्या? कम्युनिकेट हुआ है क्या? तो वो लोग ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट that advertisement is a general offer. That advertisement is read by Carlyle, जिसे पढ़ने के बाद उसने दवाई लेने का निर्णय किया है. इसका मतलब ऑफर इज कम्युनिकेटेड टू कार्लिल. ऑफर इज कम्युनिकेटेड टू कार्लिल. उसने पढ़ने के बाद दवाई ली, उसने पढ़ने के बाद दवाई ली, यानी जनरल ऑफर उसे कम्युनिकेट हो चुका है. ऑफर कैन बी, जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हैविंग द नॉलेज ऑफ द ऑफर. कोर्ट ने कहा आपकी ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये जनरल ऑफर है, इसका कम्युनिकेशन कार्लिल से होगा है क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ ली है, और ये ऑफर एक्सेप्ट करते ही आप दोनों के बीच में बाय डिफॉल्ट एक अग्रीमेंट हो चुका है, और एक कॉन्ट्रैक्ट के नाते दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड यू विल बी लाइबल टू पे 100 पाउंड्स टू कार्लिल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है केस स्टडी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल लिमिटेड. देयरफॉर कार्बोलिक स्मोक बॉल वाज लायबल टू पे 100 पाउंड्स टू कार्लिल. एक और केस लॉ है स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर के ऊपर, वो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता. इस केस को मैं पढ़ लेता हूं, बाद में दो अलग नाम लेकर समझाता हूं. गौरी दत्ता इज ए एम्प्लॉयर एंड लालमन शुक्ला इज ए हेल्पर सर्वेंट. Nephew of Gauri Datta was missing. Gauri Datta asked Lalman Shukla to search his nephew. After a time being, when Lalman Shukla was away from search of the nephew, Gauri Datta declared a reward of ₹100 to person who will find the nephew. Lalman Shukla found the nephew. On his journey return to home, he came to know about the reward of finding the nephew. Lalman Shukla handed over the nephew to Gauri Datta and demanded for ₹100 for reward, and Gauri Datta denied same, and Lalman Shukla sued him for the reward. Held that offer to be accepted must be communicated to the person to whom it is made. The offer for the reward was made to Lalman Shukla was made after Lalman Shukla went into search. As the offer was not communicated to Lalman Shukla, hence he cannot claim the reward. Now again, general offer. What did I say? General offer can be accepted by any person having the knowledge of the offer, or to whom the offer is communicated. Even if it's a general offer, if it is not communicated to a person, that person who does not have knowledge or to whom the offer is not communicated cannot accept same. Can non-foundation students accept the general offer of Snehal? Yes or no? Because offer was never communicated to them. Because offer was never communicated to them. वही ये केस लॉ है. Let's say ये है इसनु.
ये है हमारा विष्णु। ये है गणेश, विष्णु, गणेश। गणेश, हाँ, ठीक है, दांतों से समझ में आ जाएगा, तुम ही हो। तो विष्णु है, गणेश है, विष्णु गणेश में विष्णु जो है वो मालिक है, और अच्छा ठीक है, ऐसा करेंगे, ओके, बराबरी, बस फिटम फाट। अच्छा, गणेश मालिक है, गणेश मालिक है, और विष्णु हमारा हेल्पर है, माली है। सो विष्णु हेल्पर है, माली है, और गणेश मालिक है, मालिक और माली, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हमारे गणेश की शादी हो गई, शादी होने के बाद उसके 2-4 नन्हे मुन्ने बच्चे थे, नटखट, जो हमारे जूली से भी आगे थे, राइट। लेट से ये है छोटा गणेश, दिस इज बाल गणेश। नाउ देर इज वन मालिक गणेश, उनका बेटा बाल गणेश, और उनके माली मालिक, और माली माली उनके विष्णु। अब विष्णु जो है माली है, हेल्पर है, जो गणेश के खेत में पानी डालता है और काम करता है, ठीक है। खुश, समाधान, हाँ, उसको अच्छा लग रहा थोड़ा सा, राइट। सो अब हुआ क्या है समझने की कोशिश करो, केस स्टडी समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गणेश का बाल गणेश खो गया है, मिसिंग। गणेश का बाल गणेश खो गया है, गणेश का बाल गणेश खो गया है, और गणेश हो गया है परेशान। गणेश जो है हो गया है परेशान। गणेश, बाल गणेश खोने से ज्यादा उसके मम्मी की आवाज से, टेंशन से ज्यादा परेशान है कि अभी तक तो मम्मी को मालूम ही नहीं, अगर मम्मी को मालूम पड़ा तो माली तो छोड़ो, माली के छोड़ो, यहाँ पे धुलाई मेरी अलग होंगे। तो गणेश टेंशन टेंशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो गणेश फोन करता है, विष्णू काका लवकर या। तो विष्णू काका भागे भागे बोले, काय झालं, माझा बाल गणेश हरवलेला आहे। गणपती बाप्पा मोरया बोला, नारळ फोडा, आणि प्लीज जाऊन माझ्या बाल गणेशाला शोधून आणा। माय डियर बाल गणेश इज फॉरगॉट पासवर्ड हो गया है, और वो घूम चुका है, और घूमने के बाद आई डोंट रिमेंबर माय पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड को रिकवर करना है, बाल गणेश को रिकवर करना है। तो अब विष्णु भगवान प्रसन्न हो और बाल गणेश को पेश करो, खुश तो करो। तो विष्णु बोला, मैंने वफादारी निभाई है आपके परिवार के साथ, आगे भी निभाऊंगा। मैंने वफादारी ये निभाई है आपके परिवार के साथ, आगे भी निभाऊंगा। जय महेशमती, जय गणेशमती। मैं अभी के अभी जाकर बाल गणेश को ढूंढ कर लाता हूं। कट्टप्पा के जैसे हमारा जो विष्णु जो है, कट्टप्पा के जैसे हमारा विष्णु जो है बाल गणेश को ढूंढने के लिए 1-1 चला गया। अब 1-1 में घूमने के बाद, सर्चिंग करने के बाद थोड़ा आगे जाता है हमारा गणेश, सॉरी विष्णु,
और आगे जाता है, घूमते रह रहा है। अब इधर हमारा गणेश बहुत परेशान है। गणेश मती का चिराग घूम चुका है। गणेश मती का चिराग गुम हो चुका है। अब कैसे करे, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर गणेश बोल रहा अभी क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो गणेश ने क्या किया, अपने दूसरे दोस्त प्रेम को कॉल किया और बोला प्रेम, आई एम इन प्रॉब्लम, बाल गणेश घूम गया है, प्लीज हेल्प मी, आई नीड हेल्प। तो बोले वेर इज कटप्पा, आई मीन वेर इज विष्णु। तो बोले विष्णु इज वन सर्चिंग, प्लस यू टेल मी सम अदर आइडिया। He said, do one thing, तुम एक काम करो, गांव के क्लास के सभी लोगों को बुला लो, एसपीसी के, और सब में ऐलान कर दो कि जो बाल गणेश को ढूंढ कर लाएगा उसे मैं 1000 रुपए इनाम दूंगा, उसे मैं 1000 रुपए इनाम दूंगा। ये सुनते ही जूली तो पहले भागी, मैं लूंगा इनाम। तो सभी लोग भाग गए, सभी लोग गए और सभी लोग ढूंढ रहे हैं। बाल गणेश की फोटो निकाली, प्रेम ने जगह जगह ऊपर मोहल्ले मोहल्ले में पूरे लाईट के हर पोल खंबे पे लगा दिया, हरवला आहे सापडल्यावर बाल गणेशाचा संपर्क गणेशांशी करून द्या। सब जगह पर नोटिस लग गई है, आपण यांना पाहिलात का, राइट। सो सब जगह पे कम्युनिकेट कर दिया और बोला जानकारी देने वाले को 1000 रुपए इनाम मिलेंगे। हमारा विष्णु वन घूम रहा है और वन घूमते घूमते आगे वो जाता है पाथरी रोड पे, वहां पे वन भोजन दिखता है। वन भोजन दिखते ही विष्णु बोला पहले वन भोजन कर लेंगे, बाद में वन घूमेंगे। तो वन भोजन में बैठ के वन भोजन में भोजन करने का जो इरादा है विष्णु ने रखा, और अचानक उसी वन भोजन की उस जगह में, उस पर्टिकुलर जगह में मस्त शीशों के ऊपर अप एंड डाउन मस्त बाल गणेश खेल रहा है। अले विष्णु काका झोंका द्या की। अब शीशा पे एक बाजू में फिर झोंका खेल लिए। आप बोले एक बार, आप फिर बाद में शीशा पे आके बैठ गए बाल गणेश। आप बोला विष्णु को बोला तुम इधर बैठो। तो भी जैसे ही विष्णु शीशो के एक साइड पे बैठे, बाल गणेश उड़ गए और विष्णु चाचा के गोदी में आके बैठ गए। जस्ट इमेजिन, क्या कुछ भी। अबे साउथ पिक्चर में बोलता नहीं, एक गोली मारे तो 100 लोग मरते, कुछ भी। यहाँ पे इधर से उछल के आ रहा, कुछ भी। अबे डायरेक्टर में तो चुप। विष्णु चाचा एक साइड से बैठे, बाल गणेश उड़कर उनके गोदी में आ गए, बोले पकड़ लिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास लेकर जाऊंगा। तो बाल गणेश को विष्णु चाचा लेते हुए रास्ते से आ रहे हैं, और आते आते रास्ते में उन्होंने एक पोल पर वो एड देख लिया। एड में लिखा था कि जो कोई भी बाल गणेश को ढूंढ कर लाएगा उसे गणेश पिताजी 1000 रुपए इनाम देंगे। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया, और पगार में भी बोनस मिलेगा। डैडी जी जो है बाल गणेश को मैं ढूंढ कर लाया हूं, उसके बदले में मुझे 1000 रुपए देंगे। और फिर बड़े तेजी से विष्णु जो है घर पहुंचा, घर पहुंच के बाल गणेश को गणेश के पास दे दी और बोले कि ये लो बाल गणेश, आपकी अमानत आपको सौंपता हूं, जय गणेश मती। अब इसके बाद जा मां जा ऊपर जाके खाना खा। बाल गणेश ऊपर गए मम्मी के पास खाना वाना खाने को। तो अब विष्णु खड़ा है, गणेश को देख रहा है, गणेश विष्णु को देख रहा है, विष्णु गणेश को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे। फिर विष्णु, फिर गणेश, विष्णु, गणेश। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद गणेश बोलते चाललाय काय नक्की? प्राइस। बोले कौन सा प्राइस? वो जो 1000 रुपए का प्राइस तुमने अनाउंस किया है वो प्राइस दो मुझे। बोले मैंने कब तुम्हें बोला कि मैं प्राइस दूंगा? अरे पूरे गांव में ऐड लगे हैं, सब लोगों को पता है कि जो आपके बेटे की जानकारी देंगे उसको 1000 रुपए दे रहे। मैं तो ढूंढ के लाया हूं, खुशी खुशी मुझे 10,000 रुपए देने चाहिए तुमने। और बोले कौन सा प्राइस? हाँ, मेरे वफादारी का ये इल्जाम है?
अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। क्योंकि मिसेस गणेश रश्मिका ही है और कोई नहीं। सुनो, मुद्दा मुद्दा सुनो, आप सुनो, सुनो मेरी बात। चलो थोड़ा हंसी मजाक बाजू में रखो, आप पॉइंट्स पे आओ। देखो तुम्हारा मूड बनाने के लिए, थोड़े हंसी मजाक करने के लिए, हो बाबा कहीं नहीं, मिसेस गणेश रश्मिका है, बस जान लिया। वो उसको बोल रही, वो उसको बोल रही, वो उसको बोल रही, जैसे घर में सचमुच में शादी करके लाए। ठहरो जरा, सब्र करो, सुनो मेरी बात। अब देखो, जैसे विष्णु को गणेश ने बुलाया, तब उसने उसे कहा कि बाल गणेश खो गए हैं, प्लीज उसे ढूंढ कर लाइए। डिड गणेश मेक एनी ऑफर ऑफ प्राइस टू विष्णु? विदाउट मेकिंग एनी ऑफर, विदाउट एक्सेप्टिंग एनी ऑफर, विदाउट कीपिंग एनी एक्सपेक्टेशन, विष्णु जो है बाल गणेश को ढूंढने के लिए चला गया। गणेश मेड अ ऑफर to give a price of rupees 1000, but that offer for giving the price was made when Vishnu was busy in search, when he was busy in search. So when Ganesh made an offer of giving price of 1000, was Vishnu present? Was Vishnu present? Yes or no? क्या विष्णु उस वक्त प्रेजेंट था क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? गणेश ने जब ऑफर किया तब विष्णु प्रेजेंट नहीं था। तो जो कुछ भी प्राइज मनी का ऑफर गणेश ने दिया है या गणेश ने किया है, वॉज इट कम्युनिकेटेड टू विष्णु? वॉज इट कम्युनिकेटेड टू विष्णु? नो, बिकॉज गणेश ने जब ऑफर किया, विष्णु वॉज बिजी इन सर्च, विष्णु वॉज बिजी इन सर्च। सो दैट ऑफर ऑफ प्राइज ऑफ 1000 वॉज नेवर कम्युनिकेटेड टू विष्णु। विष्णु कोर्ट में क्या बोल रहा है? दिस इज अ जनरल ऑफर, जहां पर उसने क्लियरली बोला है ऐड में, जो कोई भी बाल गणेश की जानकारी देगा उसको मैं 1000 रुपए का इनाम दूंगा। मैं तो ढूंढ के लाया हूं जज साहब, ये जनरल ऑफर हमारे साहब ने किया था, वो मैंने एक्सेप्ट किया है, मैं बेटे को ढूंढ के लाया हूं। जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, सो आई वांट द रिवॉर्ड ऑफ 1000। और ये मना कर रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए। कोर्ट ने क्या बोला? यस, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, बट माय डियर विष्णु, आपने एक लाइन ठीक से नहीं पढ़ी है, जो लाइन क्लियरली ये बताती है जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन टू हुम द ऑफर इज कम्युनिकेटेड, टू हुम द ऑफर इज कम्युनिकेटेड। When the offer was communicated, you were busy in search. So that offer of prize money of 1000 was never communicated to you. When offer was never communicated to you, you cannot accept that offer and you cannot claim the reward. Hence finally, कोर्ट के अंदर जब दोनों जाते हैं तो फैसला गणेश के हक में जाता है। Even being a general offer, that offer can be accepted by Vishnu because that offer was not communicated to Vishnu. So general offer can be made to general public. Any general public can accept the general offer provided that general offer is communicated to that particular person. General public not having knowledge or to whom the general offer is not communicated cannot accept the general offer. Cases गौरी दत्ता वर्सेस लालमन शुक्ला। लालमन शुक्ला हेल्पर है जो कि विष्णु का रोल निभा रहा है, और गौरी दत्त जो है वो है हमारा गणेश जो है मालिक। अभी ओके, केस स्टडी समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट? नेक्स्ट, स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर। भाले मेकिंग अ प्रपोजल टू कटरीना, विल यू मैरी मी? स्नेहल मेकिंग अ ऑफर टू रिया टू सेल हर बाइक। नाउ these are examples of specific offer. Specific offer are those which are made to a specific person. When offer is made to a specific person, it is called as specific offer.
स्पेसिफिक ऑफर को एक और नाम है स्पेशल ऑफर। अब जब स्पेसिफिक और स्पेशल ऑफर है तो वह स्पेसिफिकली उसी व्यक्ति ने एक्सेप्ट करना है। लेट्स से रिवॉर्ड का जो ऑफर है वो गणेश ने बाल गणेश को ढूंढने के लिए स्पेसिफिकली जूली को दिया है, so that can be accepted only by Julie and no one else, right? Next है क्रॉस ऑफर। अगला टाइप क्या है? क्रॉस ऑफर। When two parties exchange identical offer in ignorance at the same time of each other offer, it is called as a cross offer. In case of cross offer, the promisor or offerer is under the obligation to accept the offer, right? Ganesh offers to sell his bike for 30,000 without accepting or without taking or listening to what Ganesh is saying. Simultaneously, Vishnu is making an offer to buy Ganesh bike for 20,000 rupees. दोनों आमने सामने खड़े हैं। गणेश बोल रहा है कि मुझे मेरी गाड़ी 30,000 रुपए में तुम्हें बेचना है। बिना ये सुने कि गणेश क्या बोल रहा है, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, हमारा विष्णु इधर से शुरू हो गया, आई वॉन्ट टू बाई योर बाइक फॉर रुपीज 20,000. नाउ देर आर टू ऑफर्स, वन इज मेड बाय गणेश टू विष्णु एंड विष्णु इज मेड बाय, वन ऑफर इज मेड बाय विष्णु टू गणेश. उधर से वो बोल रहा है 30,000 में बेचनी है, इधर से ये बोल रहा है कि 20,000 में खरीदनी है. देयर आर साइमल्टेनियस ऑफर विच आर मेड बाय बोथ द पार्टीज. सच काइंड ऑफ ऑफर आर कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर. नॉर्मली क्या होता है, गणेश ने ऑफर किया तो विष्णु एक्सेप्ट करता है. गणेश ने ऑफर किया वो तो इग्नोर हो गया, अलग से विष्णु ने ऑफर किया है गणेश को, तब गणेश एक्सेप्ट करेगा तब जाके गाड़ी बिकेगी. सो क्रॉस ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है, खुद प्रॉमिसर. गाड़ी किसे बेचनी है, गणेश को, तो गणेश ऑफर करता है, एक्सेप्टेंस कौन देता है, विष्णु. प्रॉमिसर और प्रॉमिसी. अब यहां पे प्रॉमिसर कुछ ऑफर कर रहा है, उसे इग्नोर करके प्रॉमिसी अपने ओर से कुछ ऑफर अलग से कर रहा है, विदाउट इग्नोरिंग, विदाउट लिसनिंग, बिना ये सुने कि गणेश क्या बोल रहा है, क्या ऑफर कर रहा है, उससे पहले ही हमारा विष्णु साइमल्टेनियसली अपना ऑफर कर रहा है. अब ये ऑफर एक्सेप्ट कौन करेगा, गणेश. अगर गणेश एक्सेप्ट करता है तो इमीडिएटली ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉमिस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो जब कभी भी दोनों पार्टी साइमल्टेनियस एक दूसरे को ऑफर करते हैं तो इसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर. क्या कहते हैं हम, क्रॉस ऑफर. Snehal is making an offer to sell her bicycle for rupees 5,000 to Riya. Simultaneously, Riya is making an offer to Snehal. I will buy your bicycle for rupees 3,000. Now there are offer which are being made from both the sides. When offer are made simultaneously from both the sides, such kind of offer are called as cross offer. Such kind of offer are called as cross offer. Are we okay? Next, counter offer. Whenever there is qualified acceptance of an offer, whenever there is qualified acceptance of offer, it is called as, it is called as counter offer. It is called as counter offer, right? When offeree gives qualified acceptance, acceptance which is with conditions, he is said to have made a counter offer. Ganesh offers to sell his bike for rupees 30,000 to Vishnu. Vishnu sells, I accept your offer to buy your bike for rupees 30,000, but क्या बोला उसने, बट. क्या बोला उसने, बट माय डियर गणेश, आई विल पे यू द अमाउंट ऑफ 30,000 इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 रुपीज. नाउ देर इज एन ऑफर. दैट ऑफर इज टू सेल हिज बाइक फॉर रुपीज 30,000 विच इज मेड बाय गणेश टू विष्णु. अनडाउटेडली विष्णु इज एक्सेप्टिंग द ऑफर, बट इज दिस एक्सेप्टेंस विदाउट एनी कंडीशन? Is this acceptance without any condition? No. The acceptance is a qualified acceptance. Qualified का मतलब with condition होता है. जब कभी भी qualified का मतलब क्या होता है, with conditions. Vishnu's acceptance is a qualified acceptance, acceptance with conditions, where he is making condition, I will buy your bike for rupees 30,000, but I'll pay you the amount of 30,000 in 3 equal installment of 10,000 rupees each. Is Vishnu accepting the offer as it is? Is Vishnu accepting the offer as it is? No, he is accepting the offer with some conditions. With some conditions. Such kind of offer are called as counter offer. Are called as counter offer. मम्मी सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने जाती है, साथ में कभी गए हो तो देखो, मम्मी पूछती है
आलू प्याज वाले से, भैया आलू प्याज क्या रुपए किलो दिए, वो बोलता है 30 रुपए में, नहीं भैया 20 रुपए में लगाओ. नाउ देयर इज अ काउंटर ऑफर विच इज बीइंग मेड, देयर इज अ काउंटर ऑफर, देयर इज बार्गेनिंग. जब कभी बार्गेनिंग हम करते हैं, वो कुछ बोल रहा है उसके बदले में हम कुछ कर रहे हैं, तो बार्गेनिंग होती है. दैट इज काउंटरिंग, दैट इज नॉट क्रॉस ऑफर. सो यू विल बी कंफ्यूजिंग बिटवीन क्रॉस एंड काउंटर. बार्गेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस इज काउंटर. डोंट कंफ्यूज बिटवीन क्रॉस एंड काउंटर, ये दोनों बहुत नजदीक से जाते हैं. तो प्रॉमिसर कुछ एक कर रहा है, वो कुछ अलग कर रहा है, तो दैट इज क्रॉस ऑफर. ये कुछ ऑफर कर रहा है, दूसरा वो कुछ और ऑफर कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, क्रॉस ऑफर. जब एक ऑफर दूसरे ऑफर के साथ साइमल्टेनियसली आता है, अभी देखो मैंने क्या कहा, मम्मी ने पूछा आलू प्याज कितने में है, सब्जी वाले ने कहा 30 रुपए किलो, मम्मी ने कहा 20 रुपए में देना. पहले उसका ऑफर सुना और बाद में अपनी बार्गेनिंग की. मम्मी गई सब्जी वाले के पास और कहा 1 किलो प्याज 20 रुपए में देना, सामने से वो बोल रहा 1 किलो प्याज 30 रुपए में दूंगा. दे बोथ आर मेकिंग साइमल्टेनियस ऑफर, तब जाके वो क्रॉस ऑफर होता है. क्रॉस ऑफर में साइमल्टेनियस ऑफर दोनों ऑफर करते हैं. सब्जी वाला बोल रहा है 30 रुपए किलो, मम्मी बोल रही 20 रुपए किलो में लगाओ. मम्मी ने जाते ही बोला कि 20 रुपए किलो के हिसाब से भैया ये 2 किलो प्याज दे देना, वो बोल रहा है कि 30 रुपए किलो के हिसाब से प्याज मिलेंगे. नाउ दे बोथ आर मेकिंग साइमल्टेनियस ऑफर. दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ऑफर. मम्मी ने जाके पूछा कितने में दोगे, ऑफर फिर सब्जी वाला करता है, फिर मम्मी बार्गेनिंग करती है, तो वो हो गया मेरा काउंटर ऑफर. ऑफर किए गए को भी हम क्वांटिफाई क्वालिफाई करने की, कंडीशन डालने की कोशिश करते, दैट इज काउंटर ऑफर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना, राइट. लास्ट पॉइंट, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर. Ganesh offers to sell his bike to Vishnu for rupees 30,000 and he says, ये जो मेरा ऑफर है विष्णु, ये तुझे मैं ऑफर कर रहा हूं, इस मंथ के आखिरी तारीख तक तुम अगर चाहो तो अपना एक्सेप्टेंस मुझे दे सकते हो. इस महीने की आखिरी तारीख है 28 फरवरी. कब तक? अगर तुम चाहो तो मेरी गाड़ी 30,000 रुपए में खरीद सकते हो और एक्सेप्टेंस देने के लिए तुम्हें मैं 28 फरवरी तक का वक्त देता हूं. टू एक्सेप्ट द ऑफर आई एम गिविंग यू टाइम टिल 28th of February. आई एम गिविंग यू टाइम टिल 28th of February. Now is this offer open till 28th February for Vishnu? Yes or no? Such kind of offer which are open for a period are called as standing offer, are called as standing offer, or continuing offer where the offer can be accepted over a mentioned period. Are we okay? So these are all classification of types of offer. We'll see essentials of valid offer tomorrow. Thank you so much.